Hello students, welcome to the online classes organized by Esteem Children Academy, Howrah. Myself, Anshika. So students of class 9th, I hope you all are well and doing your studies in a proper way. So as you know that in physics we had started our chapter 3 which is gravitation, and this is the second part of the video. So let's start the chapter. What is a free fall? Free fall क्या है? When an object falls towards the earth due to earth's gravity and no other force is acting upon it, the object is said to be in free fall state. जब कोई ऑब्जेक्ट आपका अर्थ की तरफ गिरता है ड्यू टू अर्थ की ग्रेविटी की वजह से एंड नो अदर फोर्स इज एक्टिंग अपॉन इट, और कोई अदर फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रहा है, तो हम क्या कहते हैं? द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन अ फ्री फॉल स्टेट. तो हम कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो फ्री फॉल स्टेट में है. फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इवन रेसिस्टेड बाय द एयर. जो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो रेसिस्टेड नहीं होते हैं एयर के थ्रू. g is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज ऑल्सो कॉल्ड द फ्री फॉल एक्सेलरेशन. ये भी आपका क्या कहलाता है? फ्री फॉल एक्सेलरेशन कहलाता है. द वैल्यू ऑफ g इज सेम ऑन द अर्थ. So the equation of motion from an object with uniform motion are valid where acceleration a is replaced by g as given under. Okay, जो वैल्यू ऑफ g है वो अर्थ पे सेम रहती है. सो द इक्वेशन ऑफ मोशन, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है फॉर एनी ऑब्जेक्ट विथ यूनिफॉर्म मोशन are valid where acceleration a is replaced by g as given under. v is equal to u plus gt, s is equal to ut plus half gt square, 2gs is equal to v square minus u square. Now consider the equations of motion. When an object at rest falls towards the earth, its initial velocity is 0. जब कोई ऑब्जेक्ट आपका अर्थ की तरफ गिरता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो v is equal to gt, s is equal to t plus half gt square and 2gs is equal to v square. When an object with some velocity, some initial velocity u falls towards earth, जब आपका कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी u के थ्रू आपका अर्थ की तरफ गिरता है, देन v is equal to u plus gt, s is equal to ut plus half gt square and 2gs is equal to v minus u square. तो ये चेंजेस आपके इक्वेशंस में आ जाते हैं. ओके, इन कंडीशंस के टाइम पे. नाउ थर्ड इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स फ्रॉम अर्थ. ऊपर की तरफ फेंका जाता है जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ से, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन. जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो आपका एक्ट करता है अपोजिट डायरेक्शन में, हेंस जी इज नेगेटिव, तो आपका जी नेगेटिव हो जाता है. देन व्हाट आर द इक्वेशंस विल फॉर्म? v इज इक्वल टू u माइनस जी टी, s is equal to ut minus half gt square and minus 2gs is equal to v square minus q square. Now difference between universal gravitational constant and acceleration due to gravity. Mass, weight. Mass is defined as the quantity of matter in an object. Okay, the weight of an object is the force by which the gravitational pull of earth attracts on the object. Mass is a scalar quantity, weight is a vector quantity. mass आपका स्केलर क्वांटिटी है और जो वेट है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी है. The mass of an object is always constant as it depends upon the inertia of the object. mass जो होता है आपका ऑब्जेक्ट का वो हमेशा कांस्टेंट होता है as it depends upon the inertia of the object. जैसे कि वो डिपेंड करता है inertia of the object के ऊपर. The weight of an object can vary different location because of changes gravitational force of the earth. Mass can never be zero. mass आपका कभी भी जीरो नहीं हो सकता है. The weight can be zero at places there is no gravitational force. और लेकिन आपका वेट जो होता है वो जीरो हो सकता है जहाँ पर आपका कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है. डिनोटेड एज m, डिनोटेड एज w. मास को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं और वेट को हम w से. F इज इक्वल टू mg, ये हमारा फॉर्मूला हो गया. ओके, और यहाँ पर आपका m इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड सिमिलरली w इज द फोर्स, सो w इज इक्वल टू mg. और इसकी यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट होती है इसकी किलोग्राम. नाउ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून. अब मून पे आपका वेट क्या होता है? जस्ट लाइक द अर्थ, द मून ऑल्सो एक्सर्ट्स अ फोर्स अपॉन ऑब्जेक्ट्स. अर्थ की तरह ही आपका मून जो है वो भी कोई फोर्स एक्सर्ट करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर. हेंस ऑब्जेक्ट्स ऑन मून ऑल्सो हैव सम वेट.
तो इसी ढंग से जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं मून के ऊपर उनका भी कोई ना कोई वेट होता है. द वेट विल नॉट बी सेम एज द वेट विल नॉट बी सेम एज दैट ऑन द अर्थ. वेट आपका सेम नहीं होता है, जैसा कि आपका अर्थ पे वेट है वो आपका वेट मून पे नहीं होगा. सो द वेट ऑन द मून कैन बी कैलकुलेटेड एज. तो वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? थ्रस्ट और प्रेशर के थ्रू. द फोर्स दैट एक्ट्स इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड थ्रस्ट. जो फोर्स आपका एक्ट करता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसको हम थ्रस्ट कहते हैं. इट इज द सिमिलर टू फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है और ये सिमिलर है फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट के. प्रेशर. अब प्रेशर क्या है? द फोर्स दैट एक्ट्स पर यूनिट एरिया टू द ऑब्जेक्ट इज प्रेशर. ओके, इट इज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया. प्रेशर इज डिनोटेड बाय P. So P is equal to thrust upon area is equal to force upon area is equal to F upon A, and the SI unit is Newton per meter square or Pascal. Okay, so why do nails have sharp edges? आपकी जो कील होती है उसकी जो एज होती है वो शार्प क्यों होती है? We know that pressure is inversely proportional to area. आपका जो प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के. सो एज एरिया इंक्रीज प्रेशर डिक्रीज. जैसे आपका एरिया इंक्रीज होगा प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा. So nails sharp edge make it easier for them to get into the wall because more pressure is exerted on the wall from a single point. तो वो आपका इजी कर देता है शार्प नेल को दीवार में जाने के लिए. As the wall become more pressure is exerted on the wall from a single point. More pressure exert होता है on the wall from a single point. Solids, they exerted pressure on the surface because of their weight. Fluids, gases and liquids, they also have weight, therefore they exert pressure on the surface and the walls of the container in which they are put in. Buoyancy. Whenever an object is immersed in a liquid, the liquid exerts a buoyant force or upthrust in the opposite direction of the gravitational force. This is also called the force of buoyancy. Okay. It depends upon the density of the fluid. ये आपकी density पे depend करती है. Therefore, an object is able to float in water when the gravitational force is less than the buoyant force. तो इसी वजह से आपका कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो आपका फ्लोट कर जाता है, पानी पे तैर जाता है इसी की वजह से. Similarly, an object sinks into the water when the gravitational force is larger than the buoyant force. इसीलिए आपका जो डूब जाता है कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर क्योंकि उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता है. Then why does an object sinks or float on water? क्यों कुछ ऑब्जेक्ट्स आपके पानी पे तैर जाते हैं और कुछ डूब जाते हैं? देखते हैं क्यों. An object can sink or float on water based on its density with respect to water. ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है? वाटर की बेस्ड ऑन इट्स डेंसिटी. उसकी डेंसिटी पे बेस करती है with respect to water. The density is defined as mass per unit volume. और इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? मास पर यूनिट वॉल्यूम से. Objects having a density less than water floats in it. और जिनकी डेंसिटी कम होती है वो आपके फ्लोट कर जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल कॉर्क फ्लो इन वाटर बिकॉज इट्स डेंसिटी इज लोअर देन दैट ऑफ वाटर. ठीक है. ऑब्जेक्ट्स दैट हैव डेंसिटी इन हायर then water sink it. For example, iron nail sinks in water because the density of iron is more than water's density. कुछ आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपके डूब जाते हैं, कुछ आके तैर जाते हैं ड्यू टू द डेंसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. ठीक है, डेंसिटी की वजह से. Thus we can conclude that buoyancy depends upon the density of the liquid. The volume of objects, as volume of object increase, its increase, decrease and vice versa. Its density also decrease, vice versa. जैसे जैसे वॉल्यूम का आपका जो वॉल्यूम है किसी ऑब्जेक्ट का वो इंक्रीज करेगा तो उसकी डेंसिटी जो है वो डिक्रीज कर जाएगी. नाउ आर्किमिडीज प्रिंसिपल. आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या है? अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड, द लिक्विड एक्सर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स अपॉन द ऑब्जेक्ट. आर्किमिडीज के रूल के अकॉर्डिंग जब कोई ऑब्जेक्ट आपका इमर्स्ड होता है लिक्विड में तो लिक्विड एक्सर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स. लिक्विड जो है वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है आपका उस ऑब्जेक्ट के. द अमाउंट ऑफ दैट फोर्स इज इक्विवेलेंट टू द वेट ऑफ द लिक्विड बाय द ऑब्जेक्ट. जो आपका अमाउंट होता है फोर्स का वो इक्विवेलेंट होता है किसके? टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट.
This means that if the weight of an object is greater then the amount of liquid is displaced. तो इसका मतलब है कि अगर आपका जो वेट है वो ऑब्जेक्ट का ज़्यादा है तो अमाउंट ऑफ लिक्विड जो हो जाएगा वो उसका greater than the amount of displaced the object will sink into the liquid. तो object आपका sink कर जाएगा. Then however if the weight of an object is less than the amount of water in displaced, the object will sink. Okay, so submarines have a tank called buoyancy tank. Whenever the submarine needs to be taken inside the water, the tank is filled with which thus increase the weight of the submarine. Similarly, when the submarine is to appear above the water, the tank is emptied and the weight of the submarine becomes the lighter and rises above the water. Ships are heavier than water, but their unique shape gives them a large volume. आप सबको पता है कि शिप जो होते हैं वो बड़े होते हैं, ठीक है, और उनका जो आपका आर हैवियर देन वाटर, पानी से वो भारी होते हैं, और जो उनकी यूनिक शेप होती है वो उनको लार्ज वॉल्यूम देती है. जो उनकी यूनिक शेप होती है उससे उनका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है. देयर वॉल्यूम इज लार्जर देन द वेट एंड the hence the water displaced by the ship provides it with the right upthrust so that it can float on water. जिसकी वजह से क्या होता है वो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं. Applications of Archimedes principle in evaluating relative density, in designing ships and submarines, in making lectometers and hydrometers. Okay, so I hope आपको ये explanation clear होगा. So just make your notes also. Thank you.